أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں 2 cos sin، پہلا فنکشن آپ کے پاس کیا ہے، cos ہے، اور دوسرا sin ہے۔ 2 cos sin ایکول ہو جائے گا، فنکشن sin ہے پہلا اور دوسرا فنکشن بھی sin ہے، سینٹر میں کیا آ رہا ہے مائنس، تو 2 cos sin برابر ہو جائے گا sin مائنس sin کے، ٹھیک ہے۔ اور 2 cos کا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو cos کو اگر میں سی لکھوں، ٹھیک ہے، پھر میں اس کو آپ کو یہ فارمولاز شارٹ کٹ میں سمجھا دے رہا ہوں اور نیکسٹ میں آگے اکٹھے بھی لکھ کے بتا دوں گا۔ یہاں پہ دونوں فنکشنز کیا ہیں، cos ہے، سینٹر میں ایڈیشن کا سائن ہے، تو 2 cos کا برابر ہو جائے گا cos پلس cos کے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو فنکشن ہے دونوں سائن ہیں اور سائن کو ہم s کہہ رہے ہیں، اس سائڈ پہ دونوں فنکشنز کے cos ہے، تو c مائنس c ہو جائے گا۔ اب یہ 4 فارمولاز یہ ہیں اور 4 فارمولاز آپ کو یہ فردر دکھا رہا ہوں۔ پہلا فنکشن کیا ہے، سائن ہے، اور دوسرا بھی سائن ہے، s پلس s ہو جائے گا، اور اس سائڈ پہ جو فنکشن ہیں، پہلا فنکشن سائن اور دوسرا cos ہے، تو 2 سائن cos ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر پہلا فارمولا اگر دیکھیں 2 cos سائن تھا یہاں پہ، جو کہ برابر تھا سائن پلس سائن کے، اور یہاں پہ سائن پلس سائن کیا برابر ہو گیا 2 سائن cos کے، تو یہ 8 فارمولا ان کی شارٹ کٹ آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں اینگلز پی اور کیو کیا ہوئے ہیں، ایڈ ہو کے 2 پہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں فرسٹ فنکشن میں، اور دوسرے فنکشن میں پی اور کیو مائنس ہو کے 2 پہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں۔ سارے فنکشن میں دیکھ لیں، پی پلس کیو بائی 2، پی پلس کیو بائی 2، پی پلس کیو بائی 2، پی پلس کیو بائی 2 فرسٹ فنکشن کے اندر، سیکنڈ فنکشن میں پی مائنس کیو بائی 2، پی مائنس کیو بائی 2، پی مائنس کیو بائی 2۔ ایس مائنس ایس اس کو لکھیں گے کیونکہ پہلا فنکشن سائن ہے، سائن مائنس سائن 2 cos سائن کے برابر آ رہا ہے، cos پلس cos کیا ہو جائے گا 2 cos cos کے برابر آ رہا ہے۔ اگر آپ شارٹ کٹ ان سارے فارمولاز کی لکھتے ہیں تو پہلا فارمولا کیا ہو جائے گا ایس پلس ایس 2SC، اور جو سیکنڈ والا فارمولا ہے ایس مائنس ایس 2CS بن رہا ہے، جو تھرڈ فارمولا ہے سی پلس سی وہ کے برابر ہے 2CC کے برابر بن رہا ہے، اور فورتھ فارمولا cos مائنس cos، تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا -2 سائن سائن کے۔ اس کو اگر ہم دوبارہ سے لکھ دیتے ہیں، سی cos ہے، cos مائنس cos کیا ہو رہا ہے -2 سائن۔ سم ڈفرنس پروڈکٹ آف سائن اینڈ کوسائنس، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 فنکشنز کیا ہو رہے ہیں، ملٹیپل ہو رہے ہیں۔ 2 سائن الفا cos بیٹا از اکول ٹو سائن الفا پلس بیٹا پلس سائن الفا مائنس بیٹا۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ دیکھیں، جو فرسٹ فنکشن ہے اس میں اینگل الفا اور بیٹا کیا ہو رہے ہیں، ایڈ ہو رہے ہیں، اور سیکنڈ جو فنکشن ہے جو بھی ہے اس میں الفا اور بیٹا کیا ہو رہے ہیں، مائنس ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو فرسٹ فنکشن ہے اس میں دونوں اینگلز ایڈ ہو رہے ہیں اور سیکنڈ فنکشن میں دونوں اینگلز کیا ہو رہے ہیں، مائنس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ فارمولاز یاد رکھتے ہیں، 4 فارمولاز اور بھی ہیں، تو 8 فارمولاز کیا ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔ ایک شارٹ کٹ بتاؤں گا جس سے کیا ہوں گے 8 فارمولاز آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اگر 8 فارمولاز یہ یاد رکھیں گے تو پیپر میں تو یہ فارمولے بھی مکس ہو جائیں گے، کوسچن بھی نہیں ہوگا۔ ایس کو سائن کہیں گے اور سی کو کیا کہیں گے، cos کہیں گے۔ اگر ہم پہلا جو 2 سائن الفا cos بیٹا ہے اس کو 2 سائن cos لکھیں، اور یہاں پہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فنکشنز ہیں، سائن ہے پہلا فنکشن اور دوسرا بھی سائن ہے، سائن کو ایس اگر ہم کہیں تو پہلا جو 2SC ہے وہ S پلس S بن جائے گا۔ پروو دیٹ سائن 10 ڈگری، سائن 30 ڈگری، سائن 50 ڈگری، سائن 70 ڈگری از اکول ٹو 1/16۔ جب بھی کوشچن آئے تو میں ایک ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ 4 لائنز لکھ لیں۔ ویسے تو اس کے 8 فارمولاز ہیں، اس ایکسرسائز میں یوز ہوتے ہیں، پیپر میں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا فارمولا اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ میں وہ فل فارمولاز نہیں لکھ رہا، کیوں نہیں لکھ رہا کہ آپ کہیں اس میں پریشان ہو کر کوشچن کو غلط نہ سالو کر دیں۔
उन फार्मूलाज को बताने से बेहतर है कि ये जो फार्मूलाज हैं शॉर्टकट, ये आप याद रख लें। साइन प्लस साइन 2 साइन कॉज है, साइन है, और सी क्या है, कॉज है। साइन माइनस साइन क्या है, 2 कॉज साइन, और उसके बाद कॉज प्लस कॉज 2 कॉज कॉज, और कॉज माइनस 2 साइन साइन। ये 4 फार्मूलाज हैं जो मैंने शॉर्टकट लिखे हुए हैं। ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ये लिखना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। साइन 10 डिग्री एज इट इज लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दें, बेहतर है। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। साइन 10 डिग्री एज इट इज लिखा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। साइन 50 डिग्री एज इट इज लिखा, और साइन 70 डिग्री भी एज इट इज लिख दिया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी थी। अगर आप क्या करेंगे, 1/2 एक नंबर है, उसको पहले लिख देंगे तो मसला तो नहीं है, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। दूसरी बात फिर मैं यहाँ पे करता होता हूँ, ये अगर पेपर में भूल जाएंगे तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, उसमें मिस्टेक लाजमी तौर पे होगी। बड़ों की इज्जत करें। देखिए, बड़ों की इज्जत का फ़ायदा ये होता है कि बड़े अपने क्या करते हैं, एक्सपीरियंस से कोई बात शेयर करते हैं, तो अगर आप उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर उनके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों मैं ओवर में यूज़ कर रहा हूँ, इस बात को क्यों कोट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। फॉर्मूला प्रोडक्ट से सम में और सम से प्रोडक्ट का भी लगाना पड़ जाता है, और अगर इस टेक्निक को याद रखेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला वो नहीं यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाएगा, एक फार्मूला भी कम हो जाएगा, और फार्मूले में कन्फ्यूजन भी नहीं आएगी। तो अगर साइन 70 डिग्री हम उसको पहले लिख दें, ठीक है, सबसे बड़ा एंगल है, उसके बाद साइन 50 डिग्री को सेकंड नंबर पे लिखने और साइन 10 डिग्री को थर्ड नंबर पे लिखने, उसमें कोई इशू नहीं है। एफ साइन है और सी कॉज है, जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ पे साइन साइन है, यानी कि एस एफ का फॉर्मूला हमने देखना है। ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हमने देखना है कि साइन साइन कहाँ किस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक मैं बात करता हूँ, हवाई फायर ना करें, देख के फायर करेंगे दुश्मन को हिट करेगा, ठीक है, और अगर देखे बगैर फायर करेंगे तो किसी दोस्त को भी फायर हो सकता है। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका कहीं गलत फार्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप देखें साइन साइन किस फार्मूले में मौजूद है, ये लास्ट वाले फार्मूले में साइन एस है, तो ये एस एस फार्मूले में आ रहा है। फोर्थ वाला फार्मूला हमारे काम का है, हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये 4 लाइन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लग जाएंगे, चलिए 10 सेकंड लगा लेते हैं। अगर ये 10 सेकंड आपने या 5 सेकंड ना सर्व किए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 फार्मूले ये लिख देंगे, शॉर्टकट जो भी हैं। उसके बाद आपने देखना साइन साइन किस फार्मूले में आ रहा है, तो यहाँ से वो फार्मूला पिक कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे कॉस माइनस कॉस नहीं है, साइन साइन है, तो अगर हम ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, 2 साइन साइन को हम पहले लिख दें नेगेटिव के साथ, और कॉस माइनस कॉस को यहाँ पे लिख दें, दोनों वैल्यूज की तो बराबर हैं। कॉस माइनस कॉस 2 साइन साइन के बराबर है, और -2 साइन साइन कॉस माइनस कॉस के बराबर है। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे, इसका यहाँ पे फुल फॉर्मूला लिखा हुआ, तो मैं वो आपके सामने नहीं कर रहा क्योंकि आप उसमें मिस्टेक कर देंगे। अब फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट पे लिखा, -2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस। तो देख सकते हैं कि -2 साइन साइन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर वो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड हो जाएगा, तो साइन साइन का फॉर्मूला बन जाएगा -1/2 कॉस माइनस कॉस। हमें इसको -2 को डिवाइड कराने की क्यों जरूरत पड़ी, कि हमारे पास क्वेश्चन में साइन साइन है, एस साइन है, तो एस एस का फॉर्मूला बन गया -1/2 कॉस माइनस कॉस। 1/2 तो हमने एज इट इज लिख दिया, -1/2 इसकी वैल्यू है अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा उसकी, क्योंकि साइन
साइन किसके बराबर है, -1/2 कॉस माइनस कॉस के बराबर। पहले हमने क्या करना होता है, आपके पास जो दोनों एंगल्स हैं 70 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों को फर्स्ट फंक्शन में ऐड करना होता है। फुल फार्मूला आपको फिर नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि आप फार्मूलाज को मिक्स कर देंगे, प्रोडक्ट से सम वाले और सम से प्रोडक्ट वाले। एक बस याद रखिए कि प्रोडक्ट से जब सम में जाएंगे या डिफरेंस में जाएंगे तो एंगल को सिर्फ क्या करना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन में, और दूसरे फंक्शन में एंगल को माइनस कर देना। देखिए पहला फंक्शन कॉस था, फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो हमारे पास दोनों एंगल से 70 डिग्री और 50 डिग्री क्या किया, उनको ऐड किया, और सेकंड फंक्शन में क्या किया, 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दिया, साइन 10 डिग्री एज इट इज लिख दिया है। अब इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है। 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। 70 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, बाकी -1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4। कॉस का फंक्शन है तो कॉस ही लिखेंगे, 70 प्लस 50 120 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री 20 डिग्री पहले से एक्सप्लेन कर दिया था, साइन 10 डिग्री एज इट इज आ गया। cos 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो -1/2 आ जाएगी, ब्रैकेट के बाद -1/4 लिखेंगे, माइनस cos 20 डिग्री भी एज इट इज लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर साइन 10 डिग्री भी एज इट इज लिखेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस क्या होता है, गंदी मछली। देखिए मैं मुहावरे बातें ये करता हूँ ताकि बच्चा इन बातों को याद रखे, क्वेश्चन को ठीक कर ले। माइनस एक गंदी मछली तो पूरा तालाब गंदा करती है, तो हम माइनस को अगर रिमूव कर दें, तालाब को साफ कर दें, हमारी आसानी हो जाएगी। माइनस जब एक बच्चे वहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं तो उसको, इसलिए माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ब्रैकेट के इनसाइड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 कन्वर्ट हो जाएगा, +1/2 में माइनस cos 20 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा, cos 20 डिग्री में, ब्रैकेट के बाद साइन 10 डिग्री एज इट इज आ गया, -1/4 ब्रैकेट के बाद 1/4 बन गया क्योंकि माइनस को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। 1/4 तो हमने एज इट इज लिखा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, cos 20 डिग्री के साथ, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं, और 1 जो है वो एज इट इज लिखेंगे, और एलसीएम का डिवाइजर है 2, वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के बाद साइन 10 डिग्री हमने एज इट इज लिखा। कुछ स्टेप्स यहाँ पे ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन में मिस्टेक ना करें। 4 और 2 मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे, 8 डिवाइजर के अंदर 8 आएगा, 1/8 इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब 1 प्लस2 cos 20 डिग्री एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के बाद साइन 10 डिग्री भी एज इट इज लिख दिया। साइन 10 डिग्री को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई के यहाँ पे 8 थे, ठीक है, 1/8 हमने लिखा, साइन 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन 10 डिग्री, और साइन 10 डिग्री को 2 cos 20 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos 20 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब इससे आगे फर्दर हम चलते हैं, 1/8 साइन 10 डिग्री और 2 cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री लास्ट स्टेप था, उसको हमने एज इट इज लिखा है। एज इट इज क्यों लिखा कि यहाँ से आगे ताकि मैं समझा पाऊँ। लास्ट जो स्टेप था उसको मैंने रिपीट किया है ताकि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 cos साइन है। देखिए जो मैंने बात की थी कि 4 फॉर्मूला, एक दो शॉर्टकट लिख लेंगे आपकी आसानी होगी। अब फौरन क्या करना है, आपने जो 4 फॉर्मूला शॉर्टकट लिखे थे उनको देखना है। 2 cos साइन किस फॉर्मूले में आ रहा है, साइन माइनस साइन में, C cos है और साइन है, ठीक है। 2CS फॉर्मूले में आ रहा है साइन माइनस साइन वाले में, वो फॉर्मूला हमने वहाँ से चूज कर लिया। अब क्वेश्चन में क्योंकि 2 cos साइन है, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। 2 cos साइन को हम अगर इस साइड पे लिख दें क्योंकि दोनों वैल्यू साइन माइनस साइन बराबर है 2 cos साइन के, तो 2 cos साइन बराबर हो जाएगा साइन माइनस साइन के। फुल फार्मूला वैसे मैंने दिखाना नहीं था लेकिन चलिए दिखा देते हैं। 2 cos साइन का जो फार्मूला है वो साइन माइनस साइन है, ठीक है।
पहले फंक्शन में देख लें दोनों एंगल्स को ऐड किया गया, दूसरे में क्या किया गया, माइनस किया गया। फार्मूला फुल इसलिए मैंने लिखे बार बार कि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 4 फार्मूला सम से प्रोडक्ट के हैं और 4 फार्मूला प्रोडक्ट से सम में, तो बच्चा उसमें परेशान हो जाता है। खैर मैंने जो आपको बात बताई है 2 cos साइन, उसको याद रखें साइन माइनस साइन के बराबर है। ये 2 cos साइन है, किसके बराबर है, साइन माइनस साइन के। फर्स्ट टाइम दोनों एंगल्स को हमने ऐड करना होता है और सेकंड टाइम हमने माइनस करना होता है एंगल्स को। 1/8 को हमने एज इट इज लिखा, साइन 10 डिग्री भी एज इट इज लिख दिया। 2 cos साइन के ऊपर फॉर्मूला लगा लिया साइन माइनस साइन का। पहले 20 डिग्री और 10 डिग्री क्या होंगे, ऐड होंगे फर्स्ट फंक्शन में, और सेकंड फंक्शन में 20 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, ब्रैकेट के बाद साइन का फंक्शन आ जाएगा। इससे पहले बाकी तो हमने एज इट इज लिखना है 1/8 साइन 10 डिग्री, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, साइन 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और माइनस का साइन है, साइन 20 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस होकर साइन 10 डिग्री रह जाएंगे। ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव का साइन है, तो साइन में पॉजिटिव का है तो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के बाद 1/8 और इनसाइड द ब्रैकेट साइन 10 डिग्री एज इट इज आएंगे। अब क्या होगा, साइन 10 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, साइन 30 डिग्री बच जाएगा, ब्रैकेट के बाद 1/8 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगी। अगर हम 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/16 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना चाहिए राइट हैंड साइड आ गई है।